I'm good. How are you? Okay, so Shivangi, let me introduce myself first. My name is Chetna. Ich heiße Chetna und ich bin ein Lehrerin von Beruf. Okay, can you please give me a small introduction about yourself before starting the classes? Yeah, sure. Chidna, I'll stick to English. Is that fine? Okay, not an issue. Mhm. Yeah, so I'm Shivangi. I'm working KPMG currently as a consultant, Okay, and I have close to 8 years of work ex. My last in the 2018, I passed is because I'll be shifting to Switzerland mm-hmm. in the next 2 months. Okay, next So, uh, month. yeah. So two Okay, months I'm in India and then I'm shifting to Switzerland. okay. Okay, so Shivangi, Jennifer ma'am already told me this thing, like you already did your E1 certification, right? With. Yeah, So Shivangi, I can you understand the basics, but A1.2 is something. I'm saying, ma'am, that A1.1 I have already completed, but A1.2 is something which I have not touched at all. okay, A1.1 you already completed, and from where did you just study A1.1? From Udemy. Okay, did you give any exam regarding that? No, ma'am, no exam, but I got that Udemy certification since I completed the courses. Okay, and may I know, like, what are the topics did you covered in your A1.1? Yeah, ma'am. So, like, first was introduction. Mm-hmm. My Nama is Ish Haize, all of that. Then there were Okay. numbers from Mm-hmm. 1 to 1000. Then Okay. time, how to say time, Okay. and how to ask for time. And from until like one and bis, like that, right? How you say Okay, all that means was there. temporal prepositionen. Like temporal prepositionen is kind of like of temporal prepositions which we basically use in a timing, like phone, bis, nach, deal, Correct, before. correct, These are the temporal prepositionen. Next one. correct, correct. So then, ma'am, this one numbers I told you. Then this one was there, like which languages do you speak? All that Okay. sprechen. Sprache. So Okay. yeah, so ich sprache English, Deutsch, all Mm-hmm. that was there. Then eating and drinking was there. Like if you can have like to have small Okay, like essen und conversations, like Getränke are small yeah, conversations such as like small conversation. What is once your you favorite order, drink? yeah, once you order the things or how to pay for that. Correct, correct, correct. So, Okay, credit card or hmm, Geld, like with your cash, like all that small like things were with there. bar or mid credit card. Okay, Correct, correct. Then in terms of grammar, ma'am, it was there that ESTT and that thing they taught, okay, verb like conjugation. correct, correct, verb Okay, conjugation and irregular verbs like fahren, essen, all regular that. and They irregular verbs. Okay, did you like study correct. the modal verb as well? Like Modal möchten, verb as wollen, können. Wollen was there, but I don't know the others actually. Okay. Wollen was there, whilst it becomes whilst and all that, Yeah. right? And what about the Yeah, yeah. trennbare verbs? Which verbs, ma'am? Trennbare verbs, the verb which can be divided into two parts. Like, Two parts. for Yeah, yeah, example, that was also there. aufstehen, mitbringen, mitkommen, Correct, 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 einkaufen. correct, correct, correct. That was stay of that, no, ish stay. Mm-hmm. Then in the end, it off is added. Yeah, that was Okay. also there. Yeah, Okay. And and Shivangi, what about the like if I say cases like nominative, accusative, dative cases? yeah, that is something, ma'am, which I didn't understand. Accusative, dative, and this thing like Like that is cases are not confusing to clear me. to you, right? Yeah, cases are not Okay. clear And to what me. about the definite and indefinite articles like there, the, das, Yeah, ein, eine, ein?
Yeah, that was there. There, Didas and Aine for masculine, and then Aine for feminine, and Ain for masculine, then Yeah. mine for masculine, and mine for Yeah, feminine. like All with that the was there. possessive articles like mine, thine, thine, he, her, Correct, owns. correct, Okay. correct. All that was there. But ma'am, this thing gets confusing to me. Like Ain becomes Einen, right? In accusative Uh, case. Correct. So that is little, I mean, I don't get See, that. if So I say Shivangi, like cases are like, if I say it's pretty much difficult to understand, so that's totally fine because in A2 you are also going to study the cases. Okay, if the cases are not clear you before, not an issue. I will teach you the cases again, and most probably you get to know the cases from now onwards because we do the practices on that basis. Okay. Okay, hmm. so I guess Shivangi, lots of okay. Second thing I just want to ask, did you go through with the perfect, like the preteritum form, the perfect, the past tense in German language? Do you know how to make a sentences Yeah, in past tense? they introduced the past tense. I think we need to add something in the prefix, right? Gim, G maybe, right? They had Like if introduced it's it, like but Essen, we need to say gegessen, treffen, Gesessen, yeah, getroffen. Like these correct, are the correct. past They had forms, introduced. and this is a perfect They, form. Like in German language, we have two type of past tense. One is perfect, another one is preteritum. Okay, perfect okay, and okay, preteritum both are different. How the, if I say both are different in their own way, if I say perfect is kind of present perfect tense, like जो चीज आपने 10 मिनट्स पहले भी की होगी, मे बी आधे घंटे पहले की होगी, मे बी 1 आवर पहले की होगी, तो वो आपका परफेक्ट टेंस में आता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Okay, okay, and there is another tense like which is used for a past tense is preteritum. Preteritum it's like जो आपने पास्ट में कोई एक ऐसा इवेंट किया था जो आपका एक बार ही हुआ है पास्ट में. Like for example, if I say when I was a child, I played basketball very very well. मीन्स जब मैं okay, बच्ची थी मैं उस टाइम पे बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी. तो ये मेरी लाइफ का एक वन टाइम इवेंट है बिकॉज नाउ आई एम नॉट मोर लाइक आई एम नो मोर किड. ओके, मैं अब बच्ची नहीं रही, तो वो आपका प्रिटेरिटुम फॉर्म में आता है. परफेक्ट आपका आता okay. है जो आपने आधे घंटे पहले किया था. लाइक मैंने आई एट एन एप्पल हाफ एन आवर बिफोर. ठीक है, उसमें यू यूज अ Hmm. परफेक्ट फॉर्म. Okay, So this is a got difference it. between perfect and the preteritum form. There is no future tense in your A1 because future आप B1 में पढ़ते हैं. Future हम A1 में नहीं पढ़ते, ना ही हम A2 में पढ़ते हैं. It's come in your B1 level. Okay. Second thing कि almost if I say आप pretty much आपने काफी like topics cover किए हैं. बट इन योर A2 आपने जो चीजें कवर करी हैं उनके साथ साथ आप नई चीजें भी पढ़ेंगी. ठीक है. सो Hmm. इन केस कि अगर आपका A1 का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है, जस्ट लेट मी नो. मैं आपको वो टॉपिक भी बता दूंगी. सेकेंड थिंग कि जब हम A2 में लाइक जब हम A2 में मूव करेंगे, A2 स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आपका जो पीछे की चीजें हैं वो भी रिवाइज हो. एंड अगर उस पॉइंट पे आपको वो चीजें क्लियर नहीं थी पहले, तो जस्ट लेट मी नो. मैं आपको पहले उसका बेसिक बताऊंगी, फिर ही हम आगे मूव ऑन कर पाएंगे. बिकॉज अनटिल अनलेस आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वो चीज आपको समझ भी नहीं आएगी. Yes, ओके, yes, ma'am. सो मैं आपको बुक भी शेयर करूंगी फॉर योर A2. ओके, उस बुक में लाइक इफ यू वांट कि मैं आपको A1 की भी बुक शेयर कर दूंगी. मैंने खुद वो लाइक बुक डिकॉर की है जिससे बहुत इजी वे में किया है जिससे आपको चीजें समझ भी आए. एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस इन दैट बुक सो दैट कि आप अपना अच्छा कमांड भी उस टॉपिक पे या एक ग्रिप बना पाएंगी. Hmm. ओके, क्योंकि मैंने जब ये 1.1 किया था तो उसको हो गया मतलब 2 हफ्ते. सो आई एम ऑल्सो लाइक तो रिविजन भी करना पड़ेगा क्योंकि नॉट इतना एन इश्यू. मैं क्लियरली आपको उतना. शेयर कर दूंगी, आप उस बुक को एक बार गो थ्रू करना, एक बार पढ़ के देखना. इफ यू डिडंट गेट एनीथिंग कि आपको समझ नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो. मैं आपको बताऊंगी, आप उसके अकॉर्डिंग फिर कर लेना. ठीक है. ओके, सो ठीक है, मैं ठीक है. सबसे पहले आपको ग्रुप में A2 की बुक शेयर कर देती हूँ.
Okay, just give me 1 second. Let me share the book with you. So do I need to purchase that book or how is it? No, you just need to take out the printout of that book. There is no need to Okay, got purchase it. that book because वो book मैंने खुद decode किया है तो आपको online नहीं मिलेगी वो. Okay, so you need to अच्छा. just take a printout of that book. I guess there is like around 62 to 65 pages in that book. That's all. Okay. Can I also have A1 ka book, ma'am, so that I revise simultaneously because Yeah, revision का not तो an जरूरत issue. I पड़ेगी. will share the A1 as well so that कि आप simultaneously वो भी पढ़ पाएं. ठीक है, बहुत बेसिक है A1 में. एंड A1 की बुक में स्टार्टिंग विद योर पर्सनल प्रोनोमन मींस लाइक योर प्रोनाउंस. ओके. Okay. ओके देन फर्स्टली जस्ट ओपन द बुक ऑफ A2. मैंने आपको शेयर कर दिया है ग्रुप में. जस्ट डाउनलोड दैट बुक एंड प्लीज ओपन द A2 फर्स्ट चैप्टर. Yeah, just opening. I will share the book in a screen as well. Just give me a second. Ma'am, my aim is to complete A2 before I leave. Online तो मैं वहां से भी करूंगी obviously classes, but A2 पहले हो जाएगा ना तो it will be easier for me to apply for a job and all that. Yeah, actually the thing is that at least आप जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे at least आपको उसकी नॉन लैंग्वेज आनी चाहिए for your Hmm. like on your daily purpose as well because like it's too difficult because there is a lots of student of mine as well जो already Hmm. जर्मनी में इस टाइम पे है but still they were very like उनको अभी भी जर्मन लैंग्वेज का they were starting with the A1. The reason behind वहां पर आप जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ते हैं वो जर्मन में ही आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर Oh. लाइक गो थ्रू विद दैट. सो इसलिए बिकॉज इफ आई से हमें लाइक we just want to learn the language like from English to German or Hindi to German, right? Because हम Hmm. उस चीज में comfortable हैं. But once we Hmm. start learning German language in German language, so it's very difficult for us to grab the thing as well. Okay, like Correct. your A2, is the screen visible to you? Yeah, it is. It is. Okay, so the first chapter, it's like the accusative case. Okay, firstly, just tell me one thing. What, like, how many cases do we have in German language? 3. Accusative, dative, and nominative. Okay, firstly, Shivangi, in German language, in total, we have 4 cases. Okay. Okay, the first case is your nominative case. The second case Yeah. is your accusative case. The third case is dative case, and the last case is genitive case. Okay. Okay. So in total, we have 4 cases in German language. Second thing, just tell me one thing: how the cases are differ from each other. Why we use cases? हम case क्यों use करते हैं German language में? Many Why we use cases का cases मुझे. in German language? One is like it when it is direct object, then it is accusative case, and when it is indirect object, then it is accusative. ऐसा कुछ है, right? Okay. Okay, Shivangi, When we refer to. if I say the 2 sentences in front of you, first one, I am eating. Second one, I'm eating an apple. What are the differences in these 2 sentences? I am eating, and second is I am eating an apple. Yeah. So यहाँ पे मैम subject है कि you're eating an apple. पहले वाले में मतलब object as in पहले वाले में it's just a generic statement. Okay. And in second one? You're specifying what you're eating. Okay. Okay, so here is the thing. If I say Shivangi, like in these 2 sentences, the difference are like in a first one, there is a subject and there is a action verb only. Like if I say I am eating, subject is I and eating is your like action verb, right?
In short, if Correct. I say in a first sentence, your subject is like the subject, your subject is a doer, right? There is no receiver in this one. Means अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में बोलूं आई एम ईटिंग, तो इसमें एक्शन भी आप ही कर रहे हैं और इस एक्शन को रिसीव भी आप ही कर रहे हैं, Okay. राइट? सो जिस इन शॉर्ट, अगर ये जो आपका केस है, ये जर्मन में आपका नॉमिनेटिव केस है. In a nominative case, we have a subject, we have an action verb, but we don't have any kind of direct object. Okay? In short, in nominative case, your subject doing the action and receiving the action. Okay? Okay. Second thing, in a second sentence, if I say I am eating an apple, in this sentence, I is the subject, eating is your action verb, and an apple is a direct object who receives the action of the verb. ठीक है? कौन Yeah. खा रहा है? मैं खा रही हूँ. क्या खा रही हूँ? सेब खा रही हूँ. तो जो ईटिंग का एक्शन है वो मेरा कौन ले रहा है? वो ले रहा है एप्पल. एक्यूजेटिव, ये जो आपका केस हुआ, ये आपका एक्यूजेटिव केस हुआ. In an accusative case, you have a subject, you have an action verb, and you have a direct object as well who is receiving the action, whether is a person or a thing. Okay. Okay? Is it clear to you? तो nominative Yes. and accusative में आपको डिफरेंस पता चला. अगर कहीं भी आपके पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया हुआ, तो वो आपका नॉमिनेटिव केस है. अगर आपके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वो आपका एक्यूजेटिव केस है. Okay. ओके? जैसे यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो. अगर मैंने बोला देयर कैलेंडर ट्रिंक्ड einen Saft, means the waiter is drinking a juice. Okay? अगर मैं इस सेंटेंस को बोलती द वेटर इज ड्रिंकिंग, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता? नॉमिनेटिव. लेकिन Correct, अगर मैंने बोला द वेटर इज ड्रिंकिंग अ जूस, तो इसमें जो जूस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो केस आपका कौन सा हो गया? एक्यूजेटिव. Okay. क्लियर दिस थिंग? नाउ Yes. Yes. जो आपके केसेस होते हैं वो आपके, सी शिवांगी, जर्मन लैंग्वेज में आपका हर एक नाउन जेंडर स्पेसिफाई होता है. ठीक है? ये हमें चीज पता है. अगर मैं जर्मन में, अगर मैं आपके बोलूं, तो जर्मन में आपके दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर, जिसे हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, and in German language which we call bestimmten article. ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? पहले आप मुझे इंग्लिश में बताओ, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? The ओके. A and यस, डेफिनेट आर्टिकल आपके होते हैं द. ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द मेन, द लेडी, द किड. ठीक है? द गेस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो आप जो इसमें जो लाइक इंग्लिश में जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जर्मन में हमारे डेफिनेट आर्टिकल होते हैं कितने टाइप के? जर्मन में डेफिनेट आर्टिकल हमारे होते हैं 4 टाइप के. कौन कौन से? there, thus, the, there, and as, the. correct. Correct. रिकॉर्ड हो रही है क्लास. Okay, we have a 4 type of article in German language. The articles are there, das, die.
Okay. Yes, ma'am. First thing, der stands for masculine, das stands Yes. for neutral, Neutral. D stands for feminine. feminine, and another D D stands for for plural. Okay. इतना आपको क्लियर है शिवांगी? Yes, yes, Second ma'am. thing, शिवांगी, here is the thing कि आपका जो ये 4 आर्टिकल्स है, इन 4 आर्टिकल्स में जो आपका दास आर्टिकल है, जिसको हमने बोला है कि ये न्यूट्रल में आता है, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स कंटेन अ दास आर्टिकल, ऐसा जर्मन में नहीं है। The Madchen. जर्मन में आपका जो दास आर्टिकल है, आपके जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी जेंडर स्पेसिफिक है, आइदर अ गर्ल और अ बॉय। Yes, ओके। ma'am. अगर मैं इस चीज को रिलेट करूं नॉट विद इंग्लिश बट विद हिंदी, तो हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं जैसे हम बोलते हैं कुर्सी, जिसमें ई की मात्रा लगती है, वो हमारी काइंड ऑफ फीमेल की तरह साउंड करती है। जिसमें आ का डंडा लगता है, वो एज अ मेल साउंड करता है। सेम एज अगर मैं जर्मन में बोलूं तो टिश हमारा क्या आर्टिकल होता है? टिश का आर्टिकल क्या होता है? टेबल को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? टिश, जिसका आर्टिकल क्या होता है? There. दैट टिश। अगर मैं बोल रही हूँ कुर्सी, कुर्सी को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? स्टूल, स्टूल का आर्टिकल क्या होता है? दी स्टूल। Their stool. दी अच्छा, these stool. Oh, okay. तो आपको ऐसे कनेक्ट कर करके भी लर्न करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग शिवांगी, जो आर्टिकल्स हैं वो तो एट द एंड आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ, इफ आई से, मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ओके, अगर इस नाउन की एंडिंग ये होगी तो इसका आर्टिकल ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो भी आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं, सबका आर्टिकल डेयर होता है, There. एक्सेप्ट बियर। Beer. का Das beer. आर्टिकल दास होता है। सेकेंड थिंग, जो भी आपका डेज नेम, मंथ्स नेम होंगे, उन सबका आर्टिकल क्या होगा? There. देयर। ठीक है। नेक्स्ट, जो भी आपके फ्लावर्स के नेम होंगे, उन सबका आर्टिकल क्या होगा? दी। 90% केस में जो नाउन आपका ई पे एंड होता है, उसका आर्टिकल दी होता है। लेकिन इसमें भी आपके एक्सेप्शन है, जैसे कि नामे, नामे की स्पेलिंग NAME होता है, ई पे एंड है, लेकिन आर्टिकल इसका क्या होगा? डेयर। जैसे केज़ो, KASE, ई पे एंड है, मतलब चीज, आर्टिकल क्या होगा? देयर। ठीक है। तो एट द एंड आपको आर्टिकल तो लर्न करने पड़ेंगे, बट इन केस आपको अगर हेल्प चाहिए, या एक वो पॉइंट रहता है कि मैम मेरे को एक बार थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा, वो मैं आपको हिंट राइट डाउन करवा दूंगी। ठीक है। तो आप उसके बिहाफ पे भी थोड़ा बहुत लर्न कर पाएंगे आर्टिकल्स। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगी शिवांगी, आर्टिकल्स को आप लर्न करने की कोशिश मत करो। वंस यू नो द आर्टिकल, आपको किसी नाउन का आर्टिकल पता है, ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, सो दैट कि आपको इससे 3 फायदे होंगे। पहला, यू गेट टू नो द वर्ड, दूसरा, यू गेट टू नो द आर्टिकल, एंड थर्ड, यू गेट टू नो हाउ टू यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। ओके। सो उससे आपको हेल्प मिलेगी, तो उस चीज से भी आप गो थ्रू अच्छे से कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, कि जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे आते हैं, जर्मन में इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपके कौन से हो गए? ए और एन, राइट? तो इंग्लिश, जर्मन में हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं 3 तरीके के, आइन, आइने, आइन। प्लूरल में इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे नहीं होते। ठीक है। अगर
डेर डेफिनेट आर्टिकल है तो उसका इनडेफिनेट आइन होगा। दी अगर आपका डेफिनेट आर्टिकल है तो उसका इनडेफिनेट आइन ने होगा। आइन, यस। फेमिनिन अगर दास आपका डेफिनेट आर्टिकल है तो उसका इनडेफिनेट आपका क्या होगा? आइन। आइन। क्लियर? यस। नॉमिनेटिव केस आपको क्लियर हुआ? नॉमिनेटिव, यस मैम। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं आपको नॉमिनेटिव केस की पीडीएफ भी शेयर करूंगी। ओके, सेकेंड थिंग, आई if I say like for example, okay, come up with the accusative case. मैं accusative case पे आती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, let me share you a PPT. Just give me a second. Just 1 minute. जिस पॉइंट पे आपको क्लियर ना हो शिवांगी, जस्ट लेट मी नो। ओके, श्योर मैम। yeah, is the screen visible to you? Yes, it is. Yes. Okay, so as it written, the nominative case is used with the subject of the sentence. The sentence subject is a person or thing performing the action of the verb, the doer of the sentence. Okay, like for example, if I say Mrs. Schmidt is flying to Rome, so how we make the sentence? Frau Schmidt fliegt nach Rome. Okay, as you know this thing, अगर आपको ये पता है चीज कि शिवांगी, जब हम किसी प्लेस पे ट्रैवल करते हैं, with each and every place they take the nach preposition with them. आप जब भी कोई भी प्लेस पे ट्रैवल करोगे तो मेक श्योर कि आप उस प्लेस के नाम से पहले नाक लगाएं, बिकॉज वो हमेशा नाक प्रेपोजिशन देती है, जिसका मतलब टूवर्ड्स या टू होता है, किसी चीज की और या टूवर्ड्स समथिंग. ओके, इफ आई से द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, राइट? अब हियर इज द थिंग, अब इसमें द डॉग आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट? स्लीपिंग आपकी वर्ब हो गई, दी सोफा आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? सो ये केस आपका कौन सा हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्कुजेटिव। एक्कुजेटिव. इसलिए हमने इसमें क्या बोला? देयर हुंड schlaft auf dem Sofa. ओके, अब इसमें देखो सेंटेंस आपका एक्कुजेटिव है, राइट? लेकिन जो डेम है, DEM, जो डेम है, ये तो आपका एक्कुजेटिव आर्टिकल नहीं है, राइट? डेम आपका एक्कुजेटिव आर्टिकल नहीं है. डेम आपका कौन सा आर्टिकल है? एनी आइडिया? डेफिनेट आर्टिकल, देयर सोफा, देयर को देम हो जाता है. आर्टिकल, बट कौन से केस का डेफिनेट आर्टिकल है ये? नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव या दाटिव? वो कैसे आइडेंटिफाई पढ़ा है? नहीं, वो केसेस में मेरे को मतलब उतना आइडिया नहीं है मैम, कंफ्यूज हो जाती हूँ. नॉट एन इश्यू, मैं आपको बता देती हूँ. देयर हियर इज द थिंग, हमें पता है व्हेन वी हैव अ सब्जेक्ट, व्हेन वी हैव अ वर्ब, व्हेन वी हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, केस आपका एक्कुजेटिव है, राइट? करेक्ट,
करेक्ट। अब यहाँ पे हमने बोला है द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, जो ये ऑन है, ऑन का मतलब क्या हो गया जर्मन में? आउफ। ओके, आउफ इज अ दाटिव प्रेपोजिशन। आउफ आपकी क्या है? एक दाटिव प्रेपोजिशन है, जिसकी वजह से, इस दाटिव प्रेपोजिशन की वजह से हमारा जो नाउन का आर्टिकल है वो किस में चेंज हो गया? दाटिव में। बिकॉज रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमने दाटिव प्रेपोजिशन को यूज किया है। अभी आपने दाटिव केस पढ़ा नहीं है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी भी इन अ डिटेल, बट यहाँ पे समझाने के लिए कि जो ये डेम जो है ये एक दाटिव आर्टिकल है। जैसे आपके डेफिनेट आर्टिकल है ना, देर दी दास दी, राइट? नॉमिनेटिव में, आकुजाटिव में डेर का क्या हो जाता है? डेन, राइट? डेर कन्वर्ट्स टू डेन इन आकुजाटिव, दी दास दी सेम रहते हैं, ठीक है? पीपीटी क्या करना बोलूं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से, लाइक अगर मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ, मैम हर एक केस के प्रेपोजिशन होते हैं क्या, जैसे यस, एक्यूजेटिव? नॉमिनेटिव का हमारा प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है? लेकिन अच्छा एक्यूजेटिव, जैसे हमारा एक्यूजेटिव दाटिव है, उनका प्रेपोजिशंस है हमारा। ओके मतलब एक्यूजेटिव में भी आपका प्रेपोजिशन है, दाटिव में भी आपका प्रेपोजिशन है, अच्छा पर लेकिन ज्यादा नहीं है। एक्यूजेटिव में 7 प्रेपोजिशंस है, दाटिव में आपकी 9 प्रेपोजिशंस है, जो आपकी ओके प्रेपोजिशंस कहलाई जाती हैं। प्रेपोजिशन अभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, बिकॉज ये A2 का टॉपिक है आपका। हम्म। या आपको स्क्रीन विजिबल है शिवांगी? हाँ यस मैम। ओके ओके, इफ आई एम सेइंग आई एम ईटिंग, राइट? सॉरी, आई एम ईटिंग, इस सेंटेंस को आप जर्मन में कैसे बनाओगे? आई एम ईटिंग, इश बिन, ओके इश habe, नो इश habe, ओके, एसन होता है ना ईटिंग, तो एस। एस, यस मैम, इश के साथ तो ई एंडिंग आता है ना। ओके, मैंने ये पुट किया है। शिवांगी, जो ये आपने Yes. सेंटेंस बनाया है ना, इट्स अ, मैं रेड में मार्क कर रही हूँ, ये जो सेंटेंस है ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। रीजन, सबसे पहला रीजन, नो इश बिन ऐसे नहीं, हम पहले सबसे पहले एक नोट लिखेंगे। पहला, when we have an action verb in a sentence, okay, इश ऐसे, we don't need any helping verb in a sentence. ओके सो इट विल बी इश ऐसे। या जब भी हमारे पास कोई भी एक्शन वर्ब सेंटेंस में होगी तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती। इज इट क्लियर टू यू? ये चीज क्लियर हुई यस मैम। आपको? जैसे शिवांगी, यस मैम। हमारी 2 टाइप की वर्ब होती है। पहली रेगुलर, राइट, जो आपने पढ़ा भी होगा, रेगुलर वर्ब, जिसे हम जर्मन में एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरी हमारी आती है इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब को हम दूसरा नाम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तीसरी वर्ब आती है आपकी मोडाल वर्ब। जर्मन में आपकी सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ब्स ही मोडाल वर्ब्स कैटेगरी में आती है, ठीक है? मोडाल वर्ब्स आपकी कौन सी वर्ब्स होती हैं? मोडाल वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जो सजेशन, रिक्वेस्ट या कमांड देते वक्त यूज हुए, जैसे कि यू शुड, यू मस्ट, यू कैन। क्लियर हुई ये चीज आपको? यस मैम। लास्ट जो आपकी लास्ट वर्ब होती है, लास्ट वर्ब आपकी होती है ट्रेनबारे वर्ब्स, ओके? लास्ट वर्ब्स जो होती है वो आपकी होती है ट्रेनबारे वर्ब,
जिसे हम जर्मन में बोलते हैं सेपरेबल वर्ब्स। मतलब इसका दूसरा नाम है सेपरेबल वर्ब। वो वर्ब्स जो कि आपकी टूट सकती हैं, जो आप सेपरेट कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज आपको? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। हमने नोट क्या लिखा है कि जब भी हमारे पास कोई एक वर्ब, लाइक इफ आई से, अगर हमारे पास कोई भी एक वर्ब है जो कि एक्शन वर्ब है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला आई एम ईटिंग, तो इस सेंटेंस को अब आप करेक्ट करके बताओ क्या आएगा? इश ऐसे। इश ऐसे। ये आपका सेंटेंस कौन से केस में आएगा? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस देखते हैं, अभी एक्कुजेटिव हम भूल जाते हैं। अब नॉमिनेटिव केस में हमारे दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, राइट, और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर ये चीज? यस मैम। अब डेफिनेट आर्टिकल हमारे जर्मन में कितने होते हैं नॉमिनेटिव केस में? 4। हाँ, कौन कौन से बताओ मुझे? देर, दस, दी एंड दी। दास, दी एंड दी। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3। ओके, कौन कौन से? आइन, आइन, आइन। आइन, आइन, आइन और डैश मैंने। अब इनका यूज कैसे होगा? अगर मैं बोल रही हूं द मैन इज सर्चिंग, कैसे बनाओगे ये सेंटेंस आप? द मैन इज सर्चिंग। Der Mann ist searching का जर्मन नहीं पता मैम। फॉर सर्चिंग वी यूज suchen. Okay. The man is suchst. ओके, suchen वर्ब है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, suchen इज यूज फॉर सर्चिंग। ठीक है, Okay. हाँ, अब बताओ क्या सेंटेंस बना? Der Mann ist ओके, अब आप ये देखो, व्हेन वी हैव एन एक्शन वर्ब, सर्चिंग हमारे पास एक्शन वर्ब है, तो इज की हमें नीड ही नहीं है। Oh हाँ, correct, correct. The man sucht. देयर मान sucht, Sucht. Yes. यहाँ पे sucht Yes क्यों मैम। आया? बिकॉज देयर मान, क्योंकि दैट मीन्स एक मेल कैटेगरी है, और एर एस जी मतलब ही शी इट के साथ हमारी कौन सी वर्ब की correct. क्या कॉन्जुगेशन आती है? टी T, लगता है, T, T, टी को हटा T. के। क्लियर हुआ Yes, ये? yes ma'am. Yes, नाउ yes ma'am. अगर मैं बोल रही हूं द लेडी इज गोइंग, द लेडी इज गोइंग, कैसे बनाओगे सेंटेंस को? फॉर गोइंग वी से गेहन वर्ब वी यूज फॉर गोइंग। कैसे बनाओगे आप इस सेंटेंस को? Die Frau दी फ्राउ geht. गेट, वेरी गुड। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, इफ आई एम सेइंग द चाइल्ड इज आस्किंग, कैसे बनाओगे आप इस सेंटेंस को? फॉर आस्किंग वी यूज फ्रागन। Yeah. Das kind frog. Kind frog। Frog. क्लियर हुआ ये आपको? अब क्लियर हो रहा है Yes. एक्कुजेटिव नॉमिनेटिव Yes. केस क्या होता है? Yes, yes मैम, अभी क्लियर हो रहा है। ठीक है, नाउ इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू से, या चलो, इट, सॉरी,